Federalism. Two or more levels of government is called federal form of government. In India, we have federal form of government. India is a federal country. Now, in India, we follow federalism because in India, we have central government, state government, and local government. Now, the next is write the key features of federalism. Now, which are the features of federalism? First of all, it has two or more levels of government. Then you will write each tier as each tier governs the citizens of the same country, but each tier has its area of jurisdiction. Jurisdiction means area under control. Each tier governs the citizens of the same country, and each tier has its area of jurisdiction, area under control. For example, central government, state government, local government govern the citizens of the same country. इंडियंस हैं हम चाहे पंजाब में रहें, चाहे गुजरात में रहते हों, चाहे कहीं पे भी. Each tier governs the citizens of the same country, and each tier has its own jurisdiction. मेयर का एरिया अंडर कंट्रोल लिमिटेड है, चीफ मिनिस्टर का एरिया अंडर कंट्रोल लिमिटेड है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का एरिया अंडर कंट्रोल वो भी उसका मेंशन्ड है. तो each tier govern the citizens of the same country and each tier has its own jurisdiction. Next is constitutional changes cannot be made by a single level of the government. For this, approval of both the levels is needed. Listen again, constitutional changes cannot be made by a single level of the government. It needs the approval of both the levels of the government. Court can interpret the constitution. Court can interpret the constitution. Next, sources of revenue of each level of the government are clearly mentioned. Sources of revenue of each level of the government are clearly mentioned. This federal system has dual objectives. Now, which are the dual objectives? One more question can be asked. Write the dual objectives of federal form of government. तो आप फीचर्स में भी लिख सकते हो. वन मार्क क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स है कौन कौन से? फर्स्ट इज to safeguard and to promote the unity of the country. To promote the unity of the country. To accommodate diversity. So these are the dual objectives. Listen again. To accommodate diversity. To promote or safeguard the unity of the country. For this, mutual understanding or mutual trust and agreement to live together is needed. For this, मैंने बोला it has dual objectives. Federal system has dual objectives. कौन कौन से dual objectives हैं? To promote the unity of the country, to accommodate diversity, and for this, mutual understanding and agreement to live together is needed. So these are the key features of federalism. Two or more levels of government is called federal form of government. In India, we follow federalism because in India we have central, state and local government. And key features of federal form of government are it has two or more levels of government. Each tier has its own. Each tier governs the citizens of the same country and each tier has its own jurisdiction. That is mentioned in the constitution. Constitutional changes cannot be made by single level. It needs the approval of both the levels. Court can interpret the constitution. Sources of revenue of each level are clearly mentioned. Next, it has dual objectives.
to promote the unity and to accommodate diversity. For this, mutual understanding and agreement to live together is needed. So these are the key features of federal form of government. पेपर में 1 मार्क में पूछ लें, व्हाट डू मीन बाय ज्यूरिसडिक्शन? एरिया अंडर कंट्रोल, एरिया अंडर कंट्रोल। अभी जैसे मैं इस क्लास में खड़ी हूँ तो दिस इज ये मैं कहूँगी कि मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, मैं इस क्लास के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कुछ भी हो तो एरिया अंडर कंट्रोल, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एरिया अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट इज which are the two roots of federation? Coming together and holding together are the two roots of federation. और पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है डिफरेंशिएट कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, या फिर डिफरेंशिएट द टू रूट्स ऑफ फेडरेशन। अब यहाँ पे बच्चे को टू रूट्स ही ना पता हुए तो वो कैसे करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द टू रूट्स coming together and holding together, then differentiate coming together, holding together। अगर इस क्वेश्चन को इजी करना है तो आप इंडिया के बच्चे हो ना, तो आपको पहले होल्डिंग टुगेदर के पॉइंट्स अपने आप आपके दिमाग में आएंगे। होल्डिंग टुगेदर में आपको इतना भी पता है कि सेंटर जो है ना दैट इज मोर पावरफुल। इंडिया में ऐसे ही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, स्टेट्स आर अनस्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, sometimes power to state are not given equally। ये भी है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, डबल नहीं है, यू नो इट वेल, है ना। तो आपको पहले होल्डिंग के पॉइंट्स आपके अपने आप दिमाग में आएंगे, बिकॉज इन इंडिया वी हैव होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहले आप होल्डिंग टुगेदर के पॉइंट्स लिख के ना उनको ऑपोजिट कर दोगे ना, जैसे आप इधर कह रहे हो सेंटर इज मोर पावरफुल, उधर आप कह दोगे सेंटर इज नॉट मोर पावरफुल। इधर आप कह रहे हो सिटीजन्स एंजॉय सिंगल सिटीजनशिप, उधर आप कह दोगे सिटीजन्स एंजॉय ड्यूअल सिटीजनशिप। पर्सन इज द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द स्टेट आल्सो। तो इस वजह से आप उधर ऐसे लिख दोगे, चेंज कर दोगे। इधर आप कह रहे हो पावर्स टू द स्टेट्स आर समटाइम्स नॉट गिवन इक्वली, उधर आप कह दोगे पावर्स टू द स्टेट्स आर गिवन इक्वली, इक्वल पावर्स आर गिवन टू ऑल द स्टेट्स, सबको इक्वल पावर्स दी हुई है। तो इस वे से आप अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना तो आपका कभी गलत भी नहीं होएगा, और वैसे भी आपको लर्न ही नहीं करना, बिकॉज इंडिया के बच्चे हो तो इंडिया का इतना तो आपको नॉलेज है ना अपनी कंट्री की। और अगर आपको कंट्रीज बतानी है तो वो भी आपको क्रैम नहीं करना। इंडिया के लिए आप SBI वर्ड लर्न रखो एंड उधर आप USA वर्ड लर्न रखो। अब USA से हम तीनों कंट्रीज बनाएंगे, SBI से हम तीनों बनाएंगे। होल्डिंग में SBI, S स्पेन, B बेल्जियम, I इंडिया, स्पेन बेल्जियम इंडिया, स्पेन बेल्जियम इंडिया। और उधर आपने मैंने बोला आप USA वर्ड लर्न रखो, USA में आप USA तो है ही है कंट्री, फिर आप S से बना दो स्विट्जरलैंड, A से ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड USA स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे आएंगी? कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में SBI वर्ड लर्न रखोगे तो आपको इजी रहेगा, स्पेन बेल्जियम इंडिया। स्पेन लिखना है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड नहीं लिखना, USA के साथ स्विट्जरलैंड आना, इतना याद रखना। अब अपने आप सोचो, आपको ये क्वेश्चन लर्न ही नहीं करना पड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद फ्रेम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखने हैं टू रूट्स, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर में आप क्या लिखोगे? कमिंग टुगेदर में सबसे पहले आप बताओगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सो पावरफुल। होल्डिंग में आप बताओगे, आपको अपने आप पता है होल्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। कमिंग में आप बताओगे कि सिटीजन्स इंजॉय ड्यूअल सिटीजनशिप, उधर आप लिखोगे सिटीजन्स इंजॉय सिंगल सिटीजनशिप। कमिंग में आप ये वाला पॉइंट बताओगे, पावर्स टू द स्टेट्स आर गिवन इक्वली, उधर आप लिखोगे पावर्स टू द स्टेट्स आर समटाइम्स नॉट गिवन
equally. States are, coming में आप लिखोगे states are totally independent. उधर आप लिखोगे states are answerable to सेंट्रल गवर्नमेंट. आप इंडिया के बच्चों, आपको इतना तो पता है स्टेट्स आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट. इतना लिखने के बाद फिफ्थ पॉइंट में आप इनकी एग्जांपल्स बता दोगे. फॉर एग्जांपल आप कमिंग में कौन सी कंट्रीज लिखोगे? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया. उधर आप कौन सी कंट्रीज बताओगे? स्पेन, बेल्जियम, इंडिया. तो मुझे नहीं लगता इतना जितना अभी तक मैंने बोला इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो. फेडरलिज्म मीन्स, एक बार मैं फिर क्विक रिवीजन करवाती हूँ. फेडरलिज्म मीन्स टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. की फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि इट हैज़ टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फिर आपको कहोगे कि different tiers govern the citizens of the same country. Each tier has its own jurisdiction and that is mentioned in the constitution. फिर आप कहोगे constitutional changes cannot be made by single level. It needs the approval of both the levels. Courts can interpret the constitution. And revenue. Sources of revenue are clearly mentioned of each the level. हर level के sources of revenue are clearly mentioned. Dual objectives. Which are the dual objectives? To promote unity and to accommodate diversity. For this, क्या चाहिए इसके लिए? Mutual understanding and agreement to live together. ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता होता है. What do which are the dual objectives of federal form of government? Next is right to roots of federation. तो आपको आते हैं 2 roots, coming together, होल्डिंग टुगेदर. आप किसको लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, कमिंग के होल्डिंग? क्योंकि किसके बच्चे हो? इंडिया के. तो इंडिया में कौन सी फेडरेशन है? होल्डिंग. तो इंडिया के पॉइंट्स तो आपको आते ही हैं. तो जो बच्चा इंडिया के पॉइंट्स लिख लेगा, हर एक को पता है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, हर एक को पता है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, हर एक को पता है इंडिया में स्टेट्स आर अनस्टेबल. तो उधर आप अपोजिट करती जाओ. हर एक को पता है इंडिया में कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर को पहले वास्ट पावर्स मिली हुई थी. नो डाउट अब नहीं है, बट पहले तो था ना. तो इट मीन्स इस रूट में समटाइम्स पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट गिवन इक्वली. यहाँ पे ऐसे होता है. ठीक है, पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट गिवन इक्वली. उधर आप अपोजिट कर दो सारे पॉइंट. फिर आप एग्जांपल लिखते वक्त आपको कितना इजी का, आप होल्डिंग टुगेदर में क्या लर्न रखोगे? एसबीआई. तो उधर आप क्या याद रखोगे? यूएसए. यूएसए से आपने कंट्रीज बना लेनी है. स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इधर स्पेन, बेल्जियम, इंडिया. तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट, इसी से कोर क्वेश्चन बनता है. हाउ कैन यू से इंडिया इज अ फेडरल कंट्री? आप कैसे कहोगे इंडिया फेडरल कंट्री? जिसको रूट्स ये फीचर्स आ गए ना, उसने अपने आप कर लेना. हाउ कैन यू से इंडिया इज अ फेडरल कंट्री? आप कैसे कहोगे इंडिया फेडरल कंट्री है? आप सबसे पहले ये कहोगे वन ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एंड इन इंडिया जस्टिफाई करना है हर पॉइंट को इंडिया के साथ. एंड इन इंडिया वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. सो दिस मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री. फर्स्ट पॉइंट आ गया. फीचर के साथ मैच कर दो ना. फिर आप बताओ इन इंडिया वी फॉलो लिस्ट सिस्टम. इन इंडिया वी फॉलो लिस्ट सिस्टम. तो आप पहले बताओ यूनियन लिस्ट. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? 97 सब्जेक्ट्स. एंड देन कौन बनाता है इस पे लॉ? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन यूनियन लिस्ट, ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट. learn the few departments are given here. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के ना दिए हुए हैं यहाँ पे. जैसे ये देखो, इनको लर्न कर लेना. ये एमसीक्यू में 100% आ जाने हैं. देख लेना आप यहाँ पे, जैसे जो इसमें मेंशन्ड है ना, बस वही. फॉर एग्जाम्पल हियर इट्स गिवन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. पेपर में पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन कम्स अंडर विच लिस्ट? स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट. तो आपको वहाँ पे आंसर लिखना है. आपको ये लर्न करने पड़ने हैं. हर एक में दिए हुए हैं, मैं सबके बोल देती हूँ. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट. इसमें आप बताओगे देयर आर 97 सब्जेक्ट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें? इट इंक्लूड्स फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी एक्सेट्रा, डिफेंस, करेंसी एक्सेट्रा.
नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट. देयर आर 66 सब्जेक्ट. स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 1 मार्क क्वेश्चन 66. स्टेट गवर्नमेंट में लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स. बाई चांस कई बार स्टेट में इमरजेंसी लगी हो, किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी हो, तो तब फिर वो प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है लॉ. तो हमने कहना कि समटाइम्स नो. स्टेट गवर्नमेंट में आप बताओगे देयर आर 66 सब्जेक्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स. इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है, लिसन केयरफुली. पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. ट्रेड, कॉमर्स, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, etc. State government makes law on these subjects. Next is concurrent list. It has 47 subjects. Both central and state government make laws on these subjects. अब इसमें क्या क्या आता है? It includes education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. ट्रेड यूनियंस बोला मैंने, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन एक्सेट्रा. बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ, बट इफ क्लैशेस अकर देन लॉ मेड बाय सेंट्रल प्रीवेल्स. बस ये याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट आ गया रेसिड्यूरी पावर्स. सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट सिस्टम. 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते होते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेसिड्यूरी पावर्स. Subjects which are not included in the list system, they are added in the residuary powers. Residuary powers are enjoyed by central government only, by parliament only. Residuary powers सिर्फ parliament के पास ही होती है, ठीक है. तो learn these all the list. हम कर रहे हैं. How can you say India is a federal country? उसमें इतना बड़ा डिटेल में करने की जरूरत नहीं. मैंने तो इसलिए सारी लिस्ट करवाई है पेपर में. आपको यूनियन लिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आपको 3 लिस्ट ही कह सकते हैं. राइट अबाउट 3 लिस्ट, अब अबाउट द लिस्ट सिस्टम ऑफ इंडिया. तो आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू नो अबाउट द लिस्ट सिस्टम ऑफ इंडिया. तो यू हैव टू राइट अबाउट ऑल द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी पावर्स. आपको फिर सारा लिखना और आपको आना. एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसमें से बन जानी है. आपको कोई भी, जैसे पुलिस कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है. अडॉप्शन कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट. तो आपको इस वे से क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आने हैं. तो इसी वे से मैं कह रही हूँ सारे एक बार अपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है. तो नेक्स्ट इज, इसके बाद अगर आप करोगे हाउ इंडिया, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं. तो उसका फर्स्ट पॉइंट आपने यही किया था कि one of the key feature of federal form of government is 2 or more levels of government, and in India we have central, state and local government. This make India a federal country. Second point आप कहोगे in India we follow list system. There are union list, state list, concurrent list. So there is power sharing. So this make India a federal country. लिस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, पावर शेयर की हुई है सेंटर ने स्टेट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ. सो दिस मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री. आप इतना डिटेल में फिर आप नहीं जाओगे. हाँ, अगर आपको बाकी पॉइंट्स नहीं आते, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, तो फिर वो इस लिस्ट सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकता है बड़ा करने के लिए. वैसे आप बाकी के पॉइंट्स लिखोगे तो बेटर होएगा. बाकी पॉइंट्स भी कवर करने चाहिए. व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, एक ही पॉइंट से थोड़ा हम फेडरल कंट्री कह देंगे. तो नेक्स्ट यू विल राइट one of the key feature of federal form of government is judiciary is totally independent. And in India, judiciary is totally independent. It is not under the control of legislature and executive. Judges can give their decisions in an independent way without any outer pressure. So this आप ये justify करते जाओगे features के साथ. One of the key feature of federal form of government is judiciary is totally independent. And in India, क्योंकि हम बता रहे हैं what makes India a federal country. And in India, judiciary is totally independent. It is not under the control of legislature and executive. Judges can give their decisions in an independent way without any outer pressure. फिर आपने फीचर में किया था constitutional changes cannot be made by single level. It needs the approval of both the levels. So आपको in India, constitutional changes cannot be made by single level. It needs the approval of the 50% of the states. So this make India a federal country. आप फीचर्स को ही
मैच करोगे इंडिया के साथ, तो अपने आप आपका ये आंसर बन जाएगा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इन द एंड वी कैन, हाँ एक ये भी तो फीचर है कि समटाइम्स पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट गिवन इक्वली एंड इन इंडिया आप कह सकते हो अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर हैड वास्ट पावर्स, सो दिस मेक इंडिया एक फेडरल कंट्री। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक होल्डिंग टुगेदर रूट में आपने पढ़ा ही है कि कई बार किसी स्टेट्स को एक्स्ट्रा पावर्स भी दी होती है, इक्वल पावर्स नहीं दी होती कई बार। तो अर्लियर आप कह सकते हो ना कि जम्मू एंड कश्मीर हैड वास्ट पावर्स, अर्लियर कह के आप कह सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास वास्ट पावर्स थी, तो दिस मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो इस वजह से आप इंडिया को जस्टिफाई करोगे उसके फीचर्स के साथ, तो अपने आप इंडिया फेडरल कंट्री बन जाना है। अब आ गया व्हाट मेक्स इंडिया, अगर आप फीचर्स लर्न कर लिए ना आपने, तो आपका व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री अपने आप लर्न हो जाना है। एंड आपको 2 रूट्स लर्न होने चाहिए, आपको 2 रूट्स कौन से, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, मैंने अभी करवाया, अगर आपको की फीचर्स आते हैं तो आपको वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हाउ फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया, अगर आपको ये करना है हाउ फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया, तो इसमें आप बताओगे प्रैक्टिस एंड सक्सीडेड एक ही बात है, ठीक है। अगर आपको करना है हाउ फेडरलिज्म सक्सीडेड और प्रैक्टिस्ड, तो ये एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें मेन 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देन लैंग्वेज पॉलिसी, देन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। हाउ फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आए तो हियर यू हैव टू गिव 3 पॉइंट्स। या हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमें तो सक्सीडेड आ गया, हम तो प्रैक्टिस्ड वाला करके आए थे, एक ही बात है, मैंने पहले ही बोला है एक ही बात है। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड हाउ फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया, तो आंसर इज सेम। आपने बताना है, पहले आपने 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है। कौन से 3 पॉइंट्स है? फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, फिर आपने बताना है लैंग्वेज पॉलिसी, फिर आपने बताना है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ये 3 पॉइंट्स जब आप जस्टिफाई कर दोगे ना, इनके बारे में लिख दोगे ना, तो आपका ये आंसर बन जाएगा हाउ फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया। क्या होती है लिंग्विस्टिक स्टेट्स? लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस ओल्ड स्टेट्स वर वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स वर सेटअप। हमारे यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस के बाद पुरानी स्टेट्स उन्होंने खत्म कर दी, वैनिश कर दी, एंड दे सेट अप न्यू स्टेट्स so that people speaking same language could live in same state। उनको ये था कि लोग एक लैंग्वेज बोलने वाले एक ही स्टेट में रहें। तो इस चीज को ध्यान में रख के स्टेट्स वर सेटअप, लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर सेटअप सो दैट लैंग्वेज बेस्ड क्लैशेस ना हो। अगर लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स ना सेटअप करते तो लैंग्वेज बेस्ड क्लैशेस होने थे। Our framers were very wise. They set up states, language-based states, linguistic states. Old states were vanished, new states were set up, and while setting up the states, they kept in mind that people speaking same language should live in same state, so that language-based clashes should not be occurred in the country. तो इस वजह से उन्होंने सारा सिस्टम सेटअप किया। But 3 states are not language based states, they are culture based states। अब वो कौन सी states हैं? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। Learn these states। One more question can be asked, name the 3 states which are not language based। culture based states बताओ, नागालैंड, उत्तराखंड and झारखंड। These are culture based states, not आप कहोगे लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स नहीं है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी। नो लिसन, लैंग्वेज पॉलिसी में आप बताओगे 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड? 22। वन मार्क क्वेश्चन, 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट आप पहले याद रखो, अर्लियर हिंदी वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, बट देयर वर क्लैशेस। पीपल ऑफ तमिलनाडु वांटेड दैट विद हिंदी
English should also make official language. Our framers were wise. They agreed. They didn't want war in, civil war in India that had happened in Sri Lanka. Because Sri Lanka में भी तो यही हुआ था. When Sinhala made official language, Tamil demanded that with Sinhala, Tamil should also make official language. But Sinhala leaders ignored them, and this led to civil war in Sri Lanka. But in India, our framers agreed when Tamil demanded that with Hindi, English should also make official language. Our framers were wise and they agreed. They didn't want civil war in India. They agreed. So with Hindi, English also made official language. Now, the work of central government is done both in Hindi and English. States have given permission, state governments have given permission that they can do their state work in their own state language. They can promote their state language. स्टेट लैंग्वेज प्रमोट है तो यहाँ पे पंजाबी कंपलसरी. इन पंजाब ना पंजाबी पढ़ रहे हो ना, हिंदी इज नॉट कंपलसरी, वो आपकी चॉइस में डाली हुई है कंप्यूटर के साथ. अगर ऐसा ना होता, स्टेट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकती है तो स्टेट ने कंपलसरी की हुई है पंजाबी. पंजाब के बच्चे पंजाबी पढ़ते हैं, तो ये लैंग्वेज पॉलिसी. States have given permission that they can do their state work in their own state language with English. State government can promote their state language. तो state government अपनी state language को promote कर सकती है. Next is center and state relation. This is left only